A very good morning to all of you. So, students, today we will study the groups and related examples. So, before I will tell you about the groups, first of all, we will study the binary operation. So, basically, what is a binary operation? Consider we have a non-empty set A. So, we can say a binary operation on a non-empty set A is defined as a rule which associates with each ordered pair AB of the elements of the set A cross A to a unique element of set A. So this is generally, we can say in short, that star is a mapping from the set A cross A to A. So for example, हमारे पास ये एक सेट है, ये मैं ले रही हूँ आपके पास A क्रॉस A सेट है. सो ये हमारे पास A क्रॉस A सेट है और ये हमारे पास सेट A है. ओके, सो मीन्स इसमें जो सेट A क्रॉस A में एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. सो इसके ऊपर हम ऑपरेशन कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, मैं स्टार इस पे डिफाइन कर रही हूँ. सो जब ये स्टार इस ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होगा तो ये कैसे लेगा, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे. सो ए स्टार, ये जो इस ऑर्डर्ड पेयर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर ए, मीन्स ये ऑपरेशन मैंने इस ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई किया है. और हम इस ऑपरेशन को डिनोट कैसे करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे ए स्टार बी से. सो यही हमारे पास क्या होगा. सो दिस इज बेसिकली वी कैन से दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट. So other binary operations, or we can say symbols, are that is for example binary operation of addition, then subtraction, then addition modulo, composition, and so on. So next is the types of binary operation. So types of binary operation, so we have these types of binary operations. So first one is the commutative, then it is non-commutative, then it is associative, other one is distributive, then identity and invertible. So commutative means if A star B, this is equal to B star A for all A B belongs to A. Similarly, non-commutative means if it is not commutative in general, or A star B is not equal to B star A for all A B belongs to A. Now as of in associative, what we have to do, we have to consider three elements from this set A, then we have to show this product, that is A star B star C, this is equal to A star B star C. Then it is distributive law. So distributive law, we have the left distributive law and the right distributive law. So this is the left distributive law and this is the right distributive law. So in this I have taken two operations, one is star and other one is composition. So then A star B composition C, this is equal to A star B composition A star C. Similarly, A composition B star C, this is equal to A star C composition B star C. Next is the identity. So E star A, this is equal to A and this is equal to A star E for all A belongs to A. So then E is known as the identity of that set. Similarly, invertible means if A star B is equal to identity that is E, and this is also equal to B star A. So then here B is called the inverse of A, and we represent it as B is equal to A inverse. So next is the algebraic system. So we can say a non-empty set G together with a binary operation star defined on it is called the algebraic system. So means हम algebraic system किसको कहा जाएगा कि अगर हमारे पास कोई non-empty set G है और उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया है, एक binary operation, और उसको हम किस तरीके से represent करेंगे, इस जैसे ये मैंने ऑर्डर यहाँ पे शो किया है, ग्रुप दैट इज ब्रैकेट्स में G and then this order means जो binary operation है स्टार. सो अगर हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो उस सेट सिस्टम को हम बेसिकली क्या कहेंगे, अलजेब्रिक सिस्टम. So next is the definition of a group. So let G be a non-empty set together with a binary operation star. Then the algebraic structure, that is, or we can say algebraic system G and star is called a group if it satisfies the following conditions. So first property is the closure property, second one is the associative property, third is the existence of identity, and fourth is the existence of inverse. So अगर हम कहेंगे कि जो कोई नॉन एम्प्टी सेट G है टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार है
वो जो एल्जेब्रिक सिस्टम हमारे पास आ जाएगा, दैट इज जी और स्टार का, उसको हम ग्रुप कब कहेंगे, अगर ये क्या करे, ये फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मीन्स अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स हम ग्रुप से ले रहे हैं तो उसके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे दैट मीन्स ए स्टार बी भी क्या होना चाहिए, उस ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए. इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम 3 एलिमेंट्स ग्रुप के लेंगे और ये कंडीशन शो करेंगे दैट ए स्टार बी देन स्टार सी दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. इसी तरीके से जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमें क्या करना है, हम एक एलिमेंट लेंगे ई जो किसको बिलोंग करेगा, जी को, दैट इज ग्रुप जी को बिलोंग करेगा, सच दैट क्या होगा कि जब वो आइडेंटिटी का बाइनरी ऑपरेशन हम उस ग्रुप के एक एलिमेंट से करेंगे, जैसे ई स्टार ए, वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, वो एलिमेंट खुद आना चाहिए. और उसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स ये इक्वलिटी भी होल्ड करती है, दैट इज ए स्टार ई. सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. सो उस केस में जो ई होगा उसको हम कहेंगे द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार. नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है जो ग्रुप जी से है और हम एक और एलिमेंट बी भी ले रहे हैं उसी सेम ग्रुप से, सो उन दोनों का जो मीन्स उस पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, उन दोनों एलिमेंट्स का वो ई के इक्वल आना चाहिए, मीन्स आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए. सो मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू ई एंड दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए. सो बी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ए, एंड हम उसको डिनोट करेंगे कैसे, ए इनवर्स से. सो इसको हम बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो नेक्स्ट डेफिनेशन होता है कि एबिलियन ग्रुप. सो हम कहेंगे एबिलियन ग्रुप क्या हो गया कि अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. सो उस केस में जो जी अंडर दैट ऑपरेशन जो होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन हुआ तो फिर हम जी अंडर एडिशन बोलेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हम लिखेंगे जी अंडर मल्टीप्लिकेशन. इसी तरीके से अगर कंपोजिशन होगा या डिवीजन होगा तो हम उसके जो हमारे पास ऑपरेशन डिफाइन होगा उसके विथ रेस्पेक्ट टू वो ग्रुप क्या बन जाएगा, एबिलियन होगा, अगर वो क्या सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सिमिलरली जो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एबिलियन ग्रुप. सो इफ ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एट लीस्ट वन ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी, देन जी अंडर स्टार इज कॉल्ड द नॉन एबिलियन ग्रुप. सो हम कहते हैं कि जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि वो ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड ना करे, या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए स्टार बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एटलीस्ट एक ऑर्डर्ड पेयर जो हम किससे ले रहे हैं, जी क्रॉस जी से, मीन्स उस कार्टेशियन सेट से है. सो उस केस में जो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी द नॉन एबिलियन ग्रुप. सो नेक्स्ट इज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप. सो अगर हमारे पास जो ग्रुप जी है वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, सो उस केस में हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप, और अदरवाइज उसको क्या हम बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप. सो इफ द सेट जी इन ए ग्रुप दैट इज जी अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार is finite, then it is called a finite group, otherwise it is called infinite group. Next is the order of a group. So order means basically the number of elements in that group. So the order of a finite group G is defined as the number of elements in that group, that is in G. So it is denoted by order of G, or we can say this cardinality of G. So if a group G has n elements, then we denote it as order of G, this is equal to n. अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ग्रुप्स की, किस तरीके से हमें प्रूव करना है कि कोई जो हमारे पास सेट है वो ग्रुप है कि नहीं है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन इसमें एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई भी चीज़ आपको गिवन हो सकती है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन. सो क्लियरली हमें क्या शो करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एबिलियन ग्रुप. सो मीन्स, और हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज एडिशन. तो हमें 2-3 चीज़ें इसमें पहले प्रूव करनी. एक तो हमें ये प्रूव करना है ये ग्रुप है. सबसे पहले अगर वो ग्रुप है फिर हम उसमें ये प्रूव करेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है. अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गया तो मीन्स वो एबिलियन
सेकेंड ग्रुप बन गया और हम यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स का ग्रुप कैसा होता है। सो आई विल राइट लेट z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1, देन इट इज़ प्लस माइनस 2, देन प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास क्या है, बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो ये हमारे पास आ गया बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमें उसकी 4 प्रॉपर्टी शो करनी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो वही 4 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। सो देन फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करूँगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सो जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये शो करना है कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन दिया हुआ है। तो मीन्स हम कोई दो जो एलिमेंट्स लेंगे इस सेट से, मीन्स जो ये z है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, और हम ये शो करेंगे कि उनका एडिशन जो है वो किसको बिलोंग करेगा, उस सेट z को बिलोंग करेगा। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर ऑल n and m belongs to set that is set of integers, we have n plus m belongs to z। so ये क्लियरली है, क्योंकि अगर हम मान के चले हमारे पास हम एक n जो ले रहे हैं दैट इज़ 1 और m मैं ले रही हूँ 2। सो जो n प्लस m होगा दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2, और वो किसके इक्वल है 3। तो मीन्स ये 1 भी ये सारा किसको बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, तो 3 भी किसको बिलोंग कर रहा है, z को। तो मीन्स यहाँ से ही क्या हमारे पास क्लियरली हो गया कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। सो यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी शो करनी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव के लिए देखें कैसे करेंगे हम, ये बहुत सिंपल है, बस आपको लॉजिक समझना है और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एसोसिएटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो सेम मैं यहाँ पे वही चीज़ करूँगी। सो हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूँगी फॉर ऑल n m एंड p, ये किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट को, तो मीन z लिख दिया हमने। सो हमें क्या शो करना है कि जो n, देन वी हैव, ऐसे लिख लेती हूँ मैं, देन वी हैव एज पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट n प्लस m देन प्लस p, दिस इज इक्वल टू n प्लस m प्लस p। सो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली जो हमारे पास टर्म है। सो मीन्स यहाँ पे पहले जब हमने मेन जब फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे स्टार लिखा था, दैट इज़ a स्टार b स्टार c। सो दिस इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनरी जो ऑपरेशन है वो एडिशन है, इसलिए स्टार की जगह पे आपने क्या सिंपली लिखना है एडिशन, जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा वही लिखना है। सो क्लियरली ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर अब हम कोई 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और ये किसको बिलोंग करेगा, मैं ऐसे लिख लेती हूँ n इज इक्वल टू 1, जस्ट ए सेकेंड, n हमारे पास 1 है, m हमारे पास 2 है और p हमारे पास 3 है। सो उस केस में ये वाली LHS पार्ट देख लेते हैं। LHS पार्ट क्या हमारे पास n प्लस m देन प्लस p। सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 2 देन प्लस 3। तो ये हो गया 2 और प्लस 1 हो गया 3 प्लस 3 6 हो गया। सो मीन्स ये 6 बन गया हमारे पास। सेम हम इसका RHS पार्ट देख लें अगर, सो RHS पार्ट हमारे पास हो गया n प्लस m प्लस p। तो मीन्स ब्रैकेट अब इन दो पार्ट को लगा लेते हैं। सो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3। तो अगेन ये हमारे पास 6 बन गया। तो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n प्लस m प्लस p, दिस इज इक्वल टू n प्लस m प्लस p। सो मीन्स ये क्या कर गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव कर गया। सो ये एक मैं एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि एसोसिएटिव क्या है। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारे पास दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देती हूँ मैं। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो सेम जो डेफिनेशन कहती है उसमें हमें क्या होना चाहिए, हमें एक हम ई जो है
वो किससे लेंगे, उस ग्रुप से लेंगे और क्या शो करेंगे, ई स्टार जो ए है, जैसे ई जो है वो बिलोंग करेगा उस सेट को, जी को मान के चले, और हमें ये शो करना है कि ई स्टार जो एलिमेंट, हम एक और एलिमेंट ए ले रहे हैं वो भी ग्रुप जी से लेंगे, सच दैट क्या होगा, ई स्टार जो ए होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए, या दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्टार ई। अब यहाँ पे जो है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन वो एडिशन है, तो मीन्स अब हमें एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है, उसका एडिशन एक एलिमेंट के साथ लेना और वो एलिमेंट इटसेल्फ आना चाहिए। सो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो अब मैं यहाँ पे देखिए कैसे लिखूंगी डायरेक्टली। सो आई विल राइट हियर, ये हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी देयर एग्जिस्ट ज़ीरो, ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो इस सेट को लाइक करेगा, सो ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड, सच दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम ज़ीरो का एडिशन मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करेंगे और साथ में विथ एन, दिस इज इक्वल टू एन इटसेल्फ एंड ऑल्सो वी कैन राइट इट एज एन प्लस ज़ीरो। सो ये हमारे पास आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एन मेरे पास 1 है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 प्लस जो 1 होगा दैट इज इक्वल टू 1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0। सो यहाँ पे 0 क्या बन गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। सो देयरफॉर आई विल राइट 0 is the identity element of set Z of integers. So ये हमारे पास आ गया, सो सेट जेड ऑफ इंटीजर। सो यहाँ से हमारे पास ये भी पार्ट प्रूव हो गया। सो अब हमने 3 प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव भी हो गया और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, पहले ग्रुप को प्रूव करने के लिए लास्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो आई विल राइट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो अब एज पर जो इसकी डेफिनेशन है वो उसमें क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है जो ग्रुप जी को बिलोंग करता है, इसी तरीके से बी भी एलिमेंट है वो ग्रुप जी को बिलोंग करेगा, तो देन जो ए स्टार बी है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए। सो अब हमें यही चीज़ प्रूव करनी है। सो अब देखिए मैं कैसे प्रूव करूँगी। सो आई विल राइट सिंस for all n belongs to z, सो अगर n z को बिलोंग करेगा, मीन्स मैं एक एलिमेंट z से ले रही हूँ तो उसका जैसे ये पॉजिटिव टर्म है तो मीन्स नेगेटिव ऑफ n मीन्स माइनस n, ये भी किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स दोनों आती हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सच दैट इनका एडिशन ले लेंगे, दैट इज n, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन था एडिशन, देन माइनस n। सो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से मेरे पास 0 की इक्वल है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि 0 क्या है इस सेट का, वो हमारे पास इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट, मीन्स 0 हमारे पास आ गया, यही चीज़ हमें यहाँ से शो करनी थी। सो ये हम इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस n प्लस n। सो बोथ इक्वलिटीज होल्ड करेगी। सो क्लियरली माइनस n is the इनवर्स ऑफ n। सो ये क्लियर हो गया यहाँ से। सो एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे तो मान के चले n जो है वो किसके इक्वल है, 1 है, तो इसका दूसरा एलिमेंट हम लेंगे दैट इज नेगेटिव में, वो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी -1। सो ये जो -1 है ये भी बिलोंग करेगा सेट z को। सो जैसे n इक्वल टू 1 ये बिलोंग करेगा सेट z ऑफ इंटीजर्स को, इसी तरीके से -1 भी बिलोंग करेगा सेट z ऑफ इंटीजर्स को। सो उस केस में ये वाला जो सम है कैसे आएगा, जब n अंडर -n, सो इसको मैं डिनोट कर लेती हूँ -n से। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 देन प्लस -1, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास क्या आ गया, ये 0 क्या आ जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है।
सो इस केस में जो -1 होगा वो क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, किसका, 1 का। सो -1 इज इन्वर्स ऑफ n, ऑफ 1, n1 ले रही हो तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या प्रॉपर्टी, यहाँ से हमें ये शो हो गया कि दैट z अंडर एडिशन जो है दिस इज ए ग्रुप तो ये फॉर्म हो गया। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है। अब हमने शो करना है फिफ्थ पार्ट इसका, दैट इज इट इज एबिलियन। एबिलियन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, एबिलियन ग्रुप के लिए मुझे क्या शो करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। तो फॉर ऑल n, m दिस बिलोंग्स टू, ये मैं 2 एलिमेंट्स ले रही हूँ z के, वी हैव टू शो। अब यहाँ पे जो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो ध्यान रखें मैं लिखूंगी n प्लस m किसके इक्वल आना चाहिए, m प्लस n के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब मैं अगर 1 जो n है वो मेरे पास 1 है और m जो है वो मेरे पास 2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, सॉरी इन दोनों का एडिशन ले लेते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस m किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 2, और वो आ जाएगा हमारे पास 3। और हम इसको इस तरीके से भी फर्दर लिख सकते हैं 2 प्लस 1, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, m प्लस n। बहुत चीज़ हमारे यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो यहाँ से हम फाइनली लिखेंगे कि दैट हैंस z अंडर एडिशन इज एन abelian group। अब डायरेक्टली आप लिखेंगे दिस इज एन abelian group एज इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपने क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है ग्रुप्स की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि लेट g इज इक्वल टू ये 2 रेज पावर r सच दैट r इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन, शो दैट इट इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमें ये शो करना है कि जो ये ग्रुप हमने डिफाइन किया है ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल है। हमें 4 प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाई करानी है, दैट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स। तो क्लियरली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं सीधा लिख लेती हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टली आई विल राइट फॉर एनी, कोई भी 2 एलिमेंट्स ग्रुप के ले लेंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, इसी फॉर्म में लेने, दैट इज 2 रेज पावर r, और मैं कोई और एलिमेंट ले रही हूँ 2 रेज पावर s, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप g को बिलोंग कर रहा है। उस केस में अब मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो आई विल राइट देन 2 रेज पावर r, देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, देन 2 रेज पावर s। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, r प्लस s। तो ये अगेन किस फॉर्म में आ गया, अगेन ये इसी फॉर्म में आ गया जो ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स थे। डायरेक्टली ये भी किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप g को बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी। इसी तरीके से आपको सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम 3 एलिमेंट्स अब यहाँ पे शो करेंगे। फॉर एनी, या मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ फॉर ऑल। फॉर ऑल 2 रेज पावर r, एक ले लेते हैं 2 रेज पावर s एंड 2 रेज पावर p, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप g को। हमें क्या शो करना है, 2 रेज पावर r, देन इनटू 2 रेज पावर s into 2 raised power p, this is equal to 2 raised power r into 2 raised power s, then into 2 raised power p। ये भी ऑब्वियस है, डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास यहाँ से ही, जैसे आपने प्रीवियस वाला पार्ट प्रूव किया था। इस पार्ट को भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड करती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे इसका LHS पार्ट है वो दैट इज़ 2 रेज पावर r, देन इनटू ये आ जाएगा 2 रेज पावर s, देन 2 रेज पावर p। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज पावर r, देन इनटू ये हो जाएगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, s प्लस p, फिर अगेन हो जाएगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये होगा r, देन प्लस s प्लस p। तो अगेन ये एलिमेंट सेम उसी फॉर्म में है, तो आप इसी तरीके से आप LHS पार्ट ले लें, तो ये RHS पार्ट ले लें अब। RHS पार्ट को जब आप प्रूव करेंगे, दैट इज़ 2 रेज पावर r इंटू 2 रेज पावर s,
2 raised power s, then into 2 raised power p. सो दिस इज इक्वल टू, ये भी अगेन इसी फॉर्म में आ जाएगा, r प्लस एस हो जाएगा, देन इट विल बी 2 रेज पावर p, और ये आपके पास आएगा 2 रेज पावर r प्लस एस प्लस पी. सो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी. सो थर्ड प्रॉपर्टी विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पहले कर लेते हैं. सो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना है. यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या कहूँगी कि जैसे 1 जो है ये ग्रुप जी को बिलोंग करेगा, और एक और एलिमेंट में x ले रही हूँ, वो क्या कर रही हूँ, वो भी मैं इस ग्रुप को बिलोंग कर रही हूँ. उस केस में क्या आ जाएगा, x इंटू 1, दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स. ये चीज़ भी होल्ड करेगी. इस केस में जो 1 हो गई वो क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा. 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ this group. यहाँ पे जैसे मैंने x लिखा है, x मीन जो हमारे पास 2 रेज पावर r टाइप का एलिमेंट है, तो मैं डायरेक्टली अब शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ लिखती है. इसी तरीके से लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर एनी, हम 2 एलिमेंट्स ले लेंगे. जैसे एक हमने ले लिया 2 रेज पावर r, ये किसको बिलोंग कर रहा है, g को. इसका नेगेटिव भी होगा, 2 रेज पावर माइनस r भी किसको बिलोंग करेगा, इस g को करेगा. उस केस में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, 2 रेज पावर r इंटू 2 रेज पावर माइनस r. बेसिस आर सेम, पावर से एडिट हो जाएगा, तो 2 रेज पावर r माइनस r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज पावर 0. एनीथिंग रेज पावर 0 इज़ 1. और वही हमारी यहाँ पे हमने भी शो किया था कि 1 क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है. ये भी हमने शो किया था 1 क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है. सेम यहाँ पे भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1. यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ G हैज़ इनवर्स. ये हमारे पास प्रूव हो गया. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं z अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेती हूँ. z अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, इज ए ग्रुप. ये हमारे पास ग्रुप आ गया. अब साथ में एक और चीज़ है कि ये इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, तो ये एबिलियन ग्रुप भी है. 5th पार्ट में मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. G इज़ एबिलियन ऑल्सो. G अंडर z ले रही हूँ तो z से लिख लेती हूँ. z अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एबिलियन ऑल्सो. मीन्स अगर हमारे पास 2 रेज पावर r है, देन मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 रेज पावर s, ये बन जाएगा 2 रेज पावर r प्लस s. हम इसको फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेज पावर s इंटू 2 रेज पावर r. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाता है. ये पार्ट भी किसको बिलोंग करेगा, सेट z को ही करेगा. यहाँ से हमने क्या सॉल्व कर दिए, एग्जाम्पल जो हमें ग्रुप्स की होगी. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे. एक और ग्रुप हमारे पास होता है जिसे हम क्वाड्रेनियन ग्रुप कहते हैं. और ये ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, g इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस i प्लस माइनस j एंड प्लस माइनस k. इसमें जब प्रोडक्ट ऑन g बाई यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से ये हमने डिफाइन किया है. वी हैव डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑन g बाई यूजुअल मल्टीप्लिकेशन टुगेदर विथ i स्क्वायर इज इक्वल टू j स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, वो -1 के इक्वल होगा. i j दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम j i होगा, और वो किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा. सिमिलरली जे के इज इक्वल टू माइनस के जे एंड दिस इज इक्वल टू आई, एंड के आई दिस इज इक्वल टू आई के माइनस टाइम्स आई के एंड दिस इज इक्वल टू जे. ये जो ग्रुप है ये हमेशा क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है. बिकॉज आप यहीं से देख सकते हैं आई जे जो है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जे आई. तो मीन्स आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई. इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती. इसको हम क्वाड्रेनियन ग्रुप कहते हैं. तो कई बार इसको भी आपको पेपर में आता है कि ये भी शो करो ये क्या है, ग्रुप है. आप इसको सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 प्रॉपर्टीज लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.